Hello students, how are you all? I'm your teacher Chandni Khan. Today we will discuss the chapter number 5 of History, Crafts and Industries in the Colonial Period. Okay, let's start with the very short answer and question. Okay, first question is name the cloth from India which was famous all over the world. यानी कि पूरे वर्ल्ड में which stuff or cloth is famous from India. That is very simple, muslin. Second question is what helped in the production of cotton at a much faster pace. The invention of the steam engine by Richard Arkwright was help in the production of cotton at a much faster pace. इंजन का जो स्टीम इंजन के प्रोडक्शन से सॉरी उसके इन्वेंशन से इसके प्रोडक्शन पर गुड इफेक्ट आया था. विच मार्केट्स वर कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश मशीन मेड कॉटन. तो मार्केट्स ऑफ यूरोप, अमेरिका एंड अफ्रीका वर कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश मशीन मेड कॉटन. पहले तो क्या है कि जो है कॉटन आप कह सकते हैं कि इंडिया से ज़्यादा जाती थी, ज़्यादा अच्छा इसका मार्केट था, लेकिन फिर जो ब्रिटिश मशीन मेड कॉटन था वो थोड़ा चीपर भी अवेलेबल हो जाता था, उस वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई थी. व्हाट वाज यूज्ड इन इंडियन विलेजेस फॉर आयरन मेल्टिंग. तो फर्नेसेस वर बिल्ट फॉर आयरन स्मेल्टिंग. ओके, this is very simple. Fifth question is which leader emphasized that China need to modernize itself to fight the Western dominations. So Dr. Sun Yat-sen emphasized that China needed to modernize itself to fight the Western domination. उनका आइडिया कॉन्सेप्ट था कि सबसे पहले चाइना को मॉडर्न होना पड़ेगा. Now the short question answer. First question is why were cotton textiles from India called muslin? So European merchants saw fine cotton textile from India with the Arab merchants in a place called Mosul in Iraq. So Indian cotton cloth began to be called muslin. ये हमने डिस्कस किया है चैप्टर में कि किस तरीके से अरब की प्लेस था मौसूल, वहाँ पर पहले बार इंट्रोड्यूस हुए थे अरब इंडियन कॉटन से, जो कि दैट वाज वेरी सॉफ्ट इन टच. तो उन्होंने दे नेम्ड दिस कॉटन मसलिन. ओके. Second question is why was printed cotton cloth from India called cheat? Okay, cheat. The printed cotton cloth from India was called chits based upon the Hindi word cheat, which means cloth with small colorful floral design. They were much in demand by the British aristocrats. जो इंडिया का आप जानते हैं कि आज भी जो प्रिंट्स है वो भी बहुत मशहूर है, और पुराने टाइम में तो पहले जो छीट का छोटे छोटे फ्लावरफुल कलरफुल डिज़ाइंस होते थे फ्लोरल, दैट इज़ कॉल्ड छीट. और इंडिया में उसे छीट कहते थे, और उन्होंने उनका प्रोनाउंसिएशन इतना क्लियर नहीं होता, छिट्स कहते थे वो, छिट. ओके. Question number third is what brought about a revolution in cotton textile production. The production by machines very easy. machines के जो इन्वेंशन हुए थे उन्हीं ने प्रोडक्शन को जो है उसमें एक तरीके से रेवोल्यूशन ले आए थे वो. यही है इसका आंसर. Question number 4 is who set up TISCO. So TISCO was set up by Jamshedji Tata. Question number 5 is why did the British impose heavy custom duty on Indian cotton textiles in Britain? So British imposed heavy custom duty on Indian cotton textiles in Britain because the British government wanted to protect their local textile industries, as the Indian cotton textiles were in great demand due to their fine designs and superior quality. Of course, जो इंडियंस डिज़ाइन थे वो देखने में भी बहुत फ़ाइन थे, ब्यूटीफुल थे, और क्वालिटी भी उनकी बहुत अच्छी थी, तो वो ज़्यादा डिमांड में थे. लेकिन ब्रिटिश ने क्या करा, उसके ऊपर हैवी ड्यूटी लगाई ताकि उसका इंपोर्ट जो है उनके वहाँ कम हो सके. ये उनकी क्लेवरनेस थी. ओके.
Now the long question answer. First question is, why were Indian weavers ruined under the British rule? So the invention of the steam engine by Arkwright changed the system of cotton textile production. The entire weaving process became mechanized and was much cheaper. This affected the Indian weavers badly. They could not compete with machine made goods. Thousands of them became unemployed. The machine made cotton cloth of Britain captured Indian market. Indian weavers lost their livelihood and were ruined. Raw cotton was taken to England, which added to this grim situation. यानी कि जो इंडियन वीवर्स थे वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जब मशीन मेड रेवोल्यूशन आया तो उस चीज़ ने जो है इंडियन वीवर्स थे उनको रूइन करके रख दिया। और ऊपर से ये भी हुआ कि यहाँ का जो रॉ मटेरियल था वो सारा का सारा बाहर जो ब्रिटेन में है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था। उससे बचे कुछ सिचुएशन भी खराब हो गई। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द प्रोडक्शन ऑफ वुड्स still decline? Why was it a tragic development? So the high quality steel produced in South India was called woods steel. It was made by mining iron with charcoal. It was a highly technical process and needed expertise. India was conquered by the British and machine made iron and steel started being imported from England. Thus, the woods still declined. It was a tragic development as this market too slipped off the hand of the Indians. यानी कि जो हमारे आर्टिशियंस थे या वीवर्स थे, उनके अलावा इस इंडस्ट्री पे भी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स जो है इफ़ेक्ट आया। कैसे कि वहाँ ब्रिटेन से जो है मशीन मेड स्टील और आयरन को यहाँ पर इंडिया में इंपोर्ट करने लगे, और इसको वुड्स स्टील जिसका नाम था, बहुत फाइन क्वालिटी का था, बहुत हाई क्वालिटी का था, उसको डिक्लाइन हो गया और ये इंडस्ट्री भी जो थी इंडियंस के हाथ से स्लिप्ड हो गई। और किस तरीके से सारी इकोनॉमिक धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप रूइंड हुए। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ डिड द टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री कम अप? सो द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, short name is TISCO, came into existence in 1907. Jamshedji Tata decided to set up this iron and steel industry in Jharkhand, then Bihar. उस टाइम बिहार में था, झारखंड अब अलग स्टेट है। A steel industry needs iron ore, manganese and coal as raw material. All these things were available here. हमने डिस्कस किया है कि किसी भी यूनिट को, किसी भी सेटअप को हम लगाते हैं, प्रोडक्शन सेटअप को, तो उसके रीज़न क्या होते हैं, उसमें सारी लोकेशन और अवेलेबिलिटी, चीप लेबर्स है, ट्रांसपोर्टेशन का वो है या कैपिटल है, सब चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए। ओके, सो तो ये सारी अवेलेबल थी जमशेदजी टाटा को झारखंड में, इसलिए उन्होंने वहाँ इसको सेटअप किया। दिस फैक्ट्री स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912. व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर started in 1914, iron came into great demand. यानी कि उन्होंने जब सेटअप किया उसके थोड़े टाइम बाद ही प्रोड्यूसिंग करना शुरू कर दी थी कंपनी ने, और अच्छा कर रही थी। ब्रिटेन वॉज एंगेज्ड इन द मेकिंग ऑफ वॉर आइटम्स, देयरफॉर द ब्रिटिशर्स टर्न टू टाटा फॉर मेकिंग रेलवे लाइन्स। टाटास आयरन वॉज बेनिफिशियल फॉर इंडिया एज वेल एज ब्रिटेन। क्या है कि उस टाइम जो आप जानते हैं 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी, वहाँ पर बिजी हो गए थे ब्रिटिश लोग। ब्रिटिशर्स के पास जो है वो जो भी आयरन और स्टील था वो वॉर से रिलेटेड आइटम्स प्रिपेयर करने में वो सारा जो है वो ध्यान उधर ही था, इन्वेस्टमेंट उधर ही हो रहा था। यहाँ इंडिया में उन्होंने जो है टाटा को ये रेलवे लाइंस और इस सब को प्रोड्यूस करने का उसको काम दिया था। तो इस तरीके से जो है टाटा आयरन जो है किस तरह इंडिया और ब्रिटेन दोनों के लिए बेनिफिशियल हुई है ना बेटा।
Now the question number 4 is, what were the different reasons for the expansion of production by TISCO during the First World War? Reasons का देखो question आ ही गया कि reason क्या क्या थे. So the answer is reasons for the expansion of production by TISCO. यानी कि expansion means क्यों production बढ़ाना, प्रोडक्शन को ज़्यादा करना टिस्को के द्वारा. व्हाट वर द रीजंस? सो द फर्स्ट रीजन इज द स्टील प्रोड्यूस्ड बाय टिस्को वाज ऑफ हाई क्वालिटी. Of course, that was very high quality steel and iron. India was a developing country, therefore there was a great demand for iron and steel. Railways were expanded and they required steel of high quality. आप जानते हैं कि रेलवे के लिए जो उसका ट्रैक बनता है वो हाई क्वालिटी का जो स्टील और आयरन चाहिए होता है. और ये था भी टिस्को का जो स्टील आयरन तो डिमांड में भी था, तो ब्रिटेन के लिए भी ये करना था, इसके लिए भी प्रोडक्शन को बढ़ाना था, तो फिर प्रोडक्शन तो बढ़ना ही था ना. And the third reason is Britain was engaged in First World War. The industries in England were producing other things. Orders were placed with the Indian companies. Means ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स थे उनका जो ध्यान था, कंसंट्रेशन किसी और उस पर लगा हुआ था. वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जो भी आइटम होते हैं उसको यूज़, वो आप जानते हैं क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, तो इक्विपमेंट्स जो भी वॉर के इक्विपमेंट्स वो तैयार करने में ही उनका स्टील और आयरन सारा इन्वेस्ट हो रहा था. यहाँ उन्होंने इंडियंस को इसलिए इसका ऑर्डर दिया था. Fifth question is, industrial revolution in Britain ruined the Indian weavers how? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने किस तरीके से इंडियन वीवर्स को रुइन किया वो एक्सप्लेन करना है. तो आंसर वुड बी इंडस्ट्रीज revolution in Britain marked the beginning of machine-made cheaper goods and the Indian weavers were worst affected. Of course मशीन मेड होगा तो उसका जो प्रोडक्शन है ज़्यादा होगा. हैंडमेड चीज़ धीरे धीरे बनती है, उसकी क्वालिटी अलग होती है, और मशीन मेड और उसकी हैंडमेड के प्रोडक्ट्स में, गुड्स में उनके रेट में फ़र्क होता है. बाय द मिडल ऑफ द 19th century, Indian markets were flooded with machine-made clothes of Britain. This led to many weavers and spinners losing their livelihood. They were forced to leave their ancestral profession and became agricultural laborers in India, and some went out to work in the plantations in Africa and South America, as we discuss in the chapters डिस्कशन कि किस तरीके से उनको धीरे धीरे करके उनके ऊपर इतनी कस्टम ड्यूटी लग रही थी, उनके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा था. जो उनके मार्केट थे, इंडियन मार्केट और यूरोप मार्केट, दोनों में ही उनका कंपटीशन किससे हुआ? मशीन मेड प्रोडक्ट से हुआ, जिसको वो फेस नहीं कर सके और उनको मतलब फोर्सफुली एग्रीकल्चरल लेबर बनना पड़ा, कुछ को इंडिया में और कुछ को इंडिया के बाहर. इस तरीके से व्यूवर्स के पूरा आप कह सकते हैं कि खराब हो गए, पूरा रुइन हो गए उनकी लाइफ, उनका कैरियर, सब कुछ. ठीक है ना, ये है. एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज, जमशेदजी इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया. व्हाई? So he was known as the father of iron industry, as we all know, in India, because he was a foresighted man whose clear vision brought the establishment of the basic industries like iron and steel factory in India. He proved to be a pioneer of industrialization in India. ना सिर्फ उन्होंने सोचा, उन्होंने इसको प्रूव भी करके दिखाया, इसलिए उनको ही कंसिडर टू बी अ पायनियर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडिया में इंडस्ट्री शुरू होनी चाहिए, खुद के लोगों के द्वारा सेटअप होना चाहिए, और उसको सक्सेसफुल करके भी दिखाया उन्होंने स्टील और आयरन इंडस्ट्री में जो है करे इन्वेस्टमेंट, ये है. एंड नाउ द वैल्यू एडेड क्वेश्चन. Value added question is, even the industries need support to grow and survive during unfavorable circumstances. What sort of support do the human need from the society and exist in the society?
So society is the place where we live. We not only survive in the society but also interact with other human beings. Human need care, protection, confidence, opportunities, etc. from the society to survive and exist in society. मीन्स यानी कि हमें किसी भी फील्ड में अगर कुछ करना है, हम नॉट ओनली इंडस्ट्रीज, किसी भी फील्ड में अगर ह्यूमन बीइंग कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स उन्हें सोसाइटी से उस सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम सोसाइटी के अंदर ही रहते हैं. सोसाइटी के बिना सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है. अगर कोई इंसान ये कि हम तो अकेले रह सकते हैं, अकेले आप रह तो लेंगे, लेकिन आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, आप कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आपको मार्केट के लिए तो सोसाइटी चाहिए ही ना. और इसके अलावा भी एज ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन को क्या चाहिए होता है? केयर चाहिए होती है, प्रोटेक्शन चाहिए होता है, और दूसरे लोग कोई री मिलता है तो कॉन्फिडेंस आता है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए. और फेयर आप कंपटीशन से भी जो है री मिलता है लोगों को. तो उससे ये सब चीज़ें सोसाइटी में रहकर ही पॉसिबल है. तो सर्वाइव करना भी मुश्किल है, लेकिन सोसाइटी नहीं होगी तो आप सर्वाइव कहाँ करोगे? तो ये सर्वाइव करने के लिए भी है और एग्जिस्ट करने, दोनों के लिए हम कह सकते हैं कि सोसाइटी इज़ अ मस्ट थिंग. ओके, ये हुआ वैल्यू एडिड क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. If you like the video, please like, subscribe and share. Goodbye. Have a nice day ahead.